بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا دوسرا چیپٹر وچ از ریلیٹڈ ود ہیومن ریسورس آف مینجمنٹ یا فنڈامنٹلس آف ہیومن ریسورس بھی کہا جاتا ہے. پہلے جو 3 لیکچرز تھے ہمارے لیکچر 1, 2 اور 3 اس میں ہم نے پروسیس آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اوپر بات کی تھی، جس میں ہم نے اسٹافنگ، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، موٹیویشن اور ریٹینشن فنکشن کو ان اے بریف ویو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی سیکنڈ چیپٹر کی، اور سیکنڈ چیپٹر ہمارا ریلیٹ کرتا ہے دا ڈائنامک انوائرمنٹ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. بیسکلی یہ چیپٹر کچھ ڈفرینٹ آؤٹ کمس کے ساتھ ڈیل کرے گا. اسی کو ہم ان اے مور ایزی مینر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ کلچرل افیکٹ is absorbed by human resource management and how technology is having an effect. What are the significant changes that have occurred in workforce composition? And we'll also describe that human resource implications of a labor shortage, how changing skills requirements are affecting the human resource management, and we'll also be explaining why organizational members focus on quality and continuous improvement, what it is, describe work process engineering and its implications on HR, and then we will be discussing the contingent workforce and its implication on human resource management, how employee involvement is affecting the human resource management, and importance of ethics. سو آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہاؤ کلچر از ہیونگ این امپیکٹ، انڈرسٹینڈنگ دا کلچرل انوائرمنٹ. اس کے اوپر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلچرز بیسکلی ہوتے کیا ہیں. کلچرز آر دا نارمس، ویلیوز which are held by the members of the society that makes the society culture. But if we talk about organizational culture تو یہی ویلیوز اور نارمز اور ریچولز جب ایک آرگنائزیشن اپنے آپ میں ہولڈ کر رہی ہوتی ہے تو وہ کیا بناتی ہے، اپنا ایک کلچر بناتی ہے. اس کو ہم آرگنائزیشنل کلچر کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز جو سی ہیں وہ ود ان دا آرگنائزیشن، کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ریکروٹمنٹ، سلیکشن، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، موٹیویشن، پرفارمنس مینجمنٹ اور ریٹینشن کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اب یہ جو ہماری پریکٹسز ہیں یہ کیا وداؤٹ اینی کلچر کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہیں. فار انسٹنس اف وی آر ورکنگ ان پاکستان تو ہمیں کس قسم کے کلچر کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا کلچر ہے. کلچر کے بیچ میں آپ کو سب کلچرز نظر آ جاتے ہیں، جیسے پاکستان میں پنجاب کا کلچر، دین سندھ کا کلچر، اور پنجاب کے کلچر میں جنوبی پنجاب کا کلچر باقی پنجاب کے کلچر سے شاید تھوڑا سا الگ ہوگا. سو دس از آلویز ہیونگ این امپیکٹ اپون دا آرگنائزیشن، جس میں ڈفرینٹ کلچر اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ امپلائیز آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ہم گلوبل کانٹیکسٹ کی بات کریں تو کلچرل انوائرمنٹ میں آپ کو شفٹ نظر آتی ہے. there are different types of employees working, different generations that are working. like آپ کو اگر نظر آتا ہے ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن، تو ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کس کو ہم کہتے ہیں؟ جب ایک آرگنائزیشن اپنے سگنیفیکنٹ آپریشنس کو مور دین ون کنٹری میں پرفارم کر رہی ہے تو وہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے. اور ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں آپ کو کیا نظر آئے گا کہ دے ول بی پیپل فرام ڈفرنٹ nations, or each nations might have their own culture. so different culture کے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے مطابق اپنی مینجمنٹ کو تشکیل دینا اٹس quite a difficult task. سو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کسی بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے اس کلچرل کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کو نظر آتا ہے بہت ساری آرگنائزیشنز جو سی ہیں وہ ملٹی نیشنل کے طور پہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کی یہاں پہ ہم تھوڑا سا ان کی ویلیوز ڈفرینٹ ہیں، ان کے مورالس، اس کسٹمز، پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹمز اینڈ لیگل سسٹمز آر ڈفرینٹ. تو جب یہ چیزیں ڈفر کرتی ہیں تو ہمیں اپنی ایچ آر پالیسیز میں، رولز اینڈ ریگولیشنز میں بھی ان ساری چیزوں کو ان اکاؤنٹ لینا پڑتا ہے بفور ڈیولپنگ آل دیز تھنگس. سو یہ تو ہمارے پاس آ گیا کہ کلچرل ایسپیکٹس جن سے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کلچر کو اگر پہلے پڑھا ہو تو وہاں پہ ہم نے 2 ٹرمز پڑھی ہوں گی.
individualism or then collectivism. There are some nations जो कि क्या कहलाती हैं, individualistic nations कहलाती हैं और बास collectivist nations कहलाती हैं. तो यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है कि countries that value individualism and acquiring things और countries that value collectivism. So यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आपको नज़र आएगा ऐसे जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म को प्रेफर किया जाता है. जापान, कोलंबिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, वेनेजुएला, फिलीपींस, दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे कलेक्टिविज्म के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म के हवाले से इंग्लैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड एंड न्यूजीलैंड. सो ये जो एक स्टेटस है ये उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इन नेशंस को दूसरी नेशन से मुख्तलिफ करता हुआ नज़र आता है. और सोसाइटी हमारी इंडिविजुअलिज्म पे बेस कर रही है या कलेक्टिविज्म पे बेस कर रही है, यही हमारे बिहेवियर्स को भी शेप अप करती हुई नज़र आती है. सो दैट वाज वन थिंग. हमने थोड़ा सा व्यू लिया कि हाउ कल्चर इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट. तो हमारी तमाम HR पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रैक्टिसेस इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, दैट इज़ द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है. टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज ड्रामेटिकली इन द 20th century. एक कहीं पे मेरी बात हो रही है एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट एंटेना एंड आई आस्क्ड द सिंपल क्वेश्चन कि भाई आप लोग कौन सी पैदावार हो, कभी आपने PTV एंटीने वाला देखा? एंड दे सेड नो, दैट पर्सन माइट बी 25 years old. तो 25 साल पहले दे हैवंट सीन. जब से उन्हें याद पड़ता है 10 साल लगा लें तो 2005 से दे माइट बी एक्सपीरियंसिंग व्हाट केबल नेटवर्क्स. टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ पैटर्न्स को बिल्कुल चेंज कर दिया हुआ है. सो हाउ टेक्नोलॉजी इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट अपॉन एनी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. यहाँ पे एक लफ्ज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, वो है ग्लोबलाइजेशन. और ग्लोबलाइजेशन की एक बेसिक चीज़ ही क्या नज़र आती है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी. व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? हम जनरल अगर बात करें तो दैट इज़ द ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग द बैरियर्स. कौन से बैरियर्स की बात कर रहे हैं हम? बिटवीन कंट्रीज. हम बॉर्डर्स को ब्रेक कर रहे हैं. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारे पास ये दो किस्म की ग्लोबलाइजेशन होती है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग. जहाँ पे वेरियस कंट्रीज़ में आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो दैट इज़ अ ग्लोबलाइजेशन बेस्ड अपॉन प्रोडक्शन. और जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो, मार्केटाइज कर सकते हो, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन बेस्ड अपॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़. सो मोर देन वन नेशन अगर आप काम कर रहे हो अपनी प्रोडक्शन का, बोइंग के डिफरेंट पार्ट्स जिनसे हैं वो आपको ऑलमोस्ट 76 कंट्रीज़ में बनते हुए नज़र आते हैं. सो इसके अलावा आप Amazon.com पे जाएं और आप पूरी दुनिया से कहीं पे भी परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं. प्रोडक्ट्स विल रीच एट योर डोर स्टेप. सो हमें तो एक तो छोटी सी चीज़ नजर आई कि टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को इन्हेंस किया. देयर आर सम अदर इफेक्ट्स, स्मॉलर इफेक्ट्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे. व्हाट इज़ द नॉलेज वर्कर? टेक्नोलॉजी की वजह से क्या आपको अंडरस्टैंड करने को एक नई टर्म मिलती है. एक वर्कर का नाम तब्दील होकर क्या हो गया जी, नॉलेज वर्कर. नॉलेज वर्कर ऐसे लोग हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जॉब्स जो हैं वो एप्लीकेशन एंड एक्वायरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द ही आपको भागती हुई नज़र आती हैं. दे आर सीइंग द ट्रेंड. ठीक है, अब ये क्या है, दे आर वर्किंग ऑन इंटरनेट, नए ट्रेंड्स को देख रहे हैं, नई मार्केटिंग कैंपेन्स को देख रहे हैं. और ये सारा का सारा किस तरह से होता है, दैट इज डन फ्रॉम द यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर शायद ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं थी. और ऐसे लोग जिनकी जॉब जो है वो नॉलेज को एक्वायर करने और शेयर करने और उसको अप्लाई करने की तरफ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज वर्कर कह रहे होते हैं. अब हाउ टेक्नोलॉजी इज़ अफेक्टिंग दीज नॉलेज वर्कर्स, इसको भी हम थोड़ी से में देखते हैं. पहले बात कर लेते हैं हाउ टेक्नोलॉजी इज़ अफेक्टिंग द HR प्रैक्टिसेस. ये बड़ी सादा सी ज़ुबान में हम बात करेंगे. जस्ट टेक एन एग्जांपल, द
फंक्शन ऑफ HR जिसको हमने स्टाफिंग कहा था, उसमें एक एस्पेक्ट था रिक्रूटिंग का। रिक्रूटमेंट क्या होती है कि जी डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट। पहले हम रिक्रूटमेंट कैसे करते थे, अखबार का एक ऐड आता था और उसके ऊपर लोग अप्लाई करते थे और उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होती थी। आज आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट नज़र आती है, monster.com, rosie.pk एंड मेनी मोर साइट्स और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वेबसाइट्स जो कि करियर का एक अलग से सेक्शन रखी होती हैं जहाँ पे नई जॉब्स को आप देख सकते हैं। तो हमारी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस जो सी हैं वो चेंज होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स बन गए और इसके अलावा ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो गए वगैरह वगैरह। इसी को अगर हम रिलेट करना चाहें तो सिलेक्शन से भी कर सकते हैं। जो टेस्ट कंडक्ट होते थे पहले वो फिज़िकल स्पेस के ऊपर होते थे, अब वो ई स्पेस प्लेस पे होने शुरू हो गए हैं। ये ऑनलाइन आपने अपना एक लॉगिन क्रिएट किया एंड यू आर जॉइनिंग द टेस्ट। अगर आप टेस्ट पास करते हैं तो आप अगले प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे होंगे, अदरवाइज शायद आपको आगे वो प्रोसीड नहीं करेंगे। सो पोटेंशियल पूल ऑफ कैंडिडेट रिक्रूटमेंट का लिए जो बनता था वो चेंज हो गया। एम्प्लॉय सिलेक्शन मेथड्स जिनसे हैं वो आपको चेंज होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रैक्टिसेस हमारी बिल्कुल तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टेक्निक्स आपको बदलती हुई नज़र आ रही हैं। हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग के आदी थे, अब ऑनलाइन कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। आपकी वाइट बोर्ड वाली टेक्नोलॉजीज जिसको लर्निंग के लिए एक पिलर समझा जाता था वो चेंज हो गई है। मल्टीमीडिया ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का दौर गुजर गया एंड मैनी मोर सिमुलेशन एक्सरसाइजेज आर अवेलेबल देयर। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल मेथड्स जिनसे हैं वो आपको चेंज होते हुए नज़र आते हैं, जिनकी हैवी डिपेंडेंस किसके ऊपर नज़र आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र आती है, जिसको यूज़ करके वो एम्प्लॉइज़ को ट्रेन और डेवलप कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, 5 डिफरेंट इलाकों में बैठे हुए लोग एक ही ट्रेनिंग का पार्ट हैं और वो कैसे इसमें पार्ट हैं, नो फिजिकल स्पेस बट इलेक्ट्रॉनिकली दे आर गैदर्ड और वो उस एक ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं एथिक्स एंड एम्प्लॉय राइट्स की, तो ये भी चेंज हो गए। जैसे आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मलकियत है, बट हाउ मच डाटा यू कैन हैव ऑफ योर ओन, जिसको आप अपना डाटा कह सकते हैं, विच इज़ नॉट अंडर द राइट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विलेंस दे सकती है आपके पीसी पे काम करते हुए, किस हद तक दखल अंदाजी की जा सकती है। दीज आर ऑल इश्यूज़ जो कि आपको किस तरह से नज़र आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर अराइज होते हुए नज़र आते हैं। एंड देन मोटिवेशन ऑफ द नॉलेज वर्कर्स, हाउ टू मोटिवेट नॉलेज वर्कर्स, क्योंकि इनकी जॉब्स इस नेचर की है जब जैसे वो काम कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहे, तो कि उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट्स के क्राइटेरियाज क्या होंगे, ठीक है। क्या उनको जिस तरह से एक नॉर्मल एम्प्लॉय की आउटकम जनरेट होती है उसी तरह से कंसिडर किया जाएगा। देन पेइंग एम्प्लॉइज मार्केट वैल्यू, दिस इज़ अनदर इशू जो कि इम्पॉर्टेंट है कि ये इट्स बिकम मोर डिफ़िकल्ट कि ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं वो टेक्निकल और प्रोफेशनल एम्प्लॉइज़ को रिटेन रखना चाहती हैं, तो उनको वो क्या पे करें कि वो उनके पास लंबे अरसे के लिए काम करते रह सकें। ये चेंज होती हुई नज़र आती है। कम्युनिकेशन वेज एंड मीन्स मीडियम्स हैव चेंज्ड। जैसे अब व्हाट्सएप हैज़ बिन कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और बहुत सारी ऐप्स आपको आती हुई नज़र आती हैं जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की को यूटिलाइज़ करती हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वर्क साइट्स, ये पॉसिबिलिटी किस तरह से हुई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कि आप इसी लेक्चर को घर बैठे सुन रहे हैं। सो इट्स माइट बी एन ऑनलाइन क्लास। सो ये पहले से इस तरह से पॉसिबल नहीं था कि डिसेंट्रलाइज्ड वर्क साइट्स बनाई जा सकें जहाँ पे एम्प्लॉइज़ अपना काम कहीं और बैठ के करें और उसको ऑफर ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन कर ले। स्किल लेवल्स आर चेंजिंग, विदाउट IT सपोर्ट नो जॉब माइट बी पॉसिबल, विदाउट नोइंग कंप्यूटर नो जॉब माइट बी पॉसिबल, और इसी की लीगल कंसर्न्स भी आपको नज़र आती हैं। सो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के पोर्शन में इंशाल्लाह अपने तौर पे देखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।